ये शीट जो आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी है, सबसे पहले आप क्या करें, इसके ऊपर अपना नाम लिख लीजिए, राइट। जैसे आप एग्जांपल के लिए यू कैन सी आई एम राइटिंग माय नेम हियर इन कैपिटल लेटर्स, ऑल ऑफ यू राइट योर नेम, फाइन। उसके बाद आप क्या करो बच्चे, इस शीट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए बाय ड्रॉइंग 2 वर्टिकल लाइंस, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। आपने क्या करना है बेटे, उसके लिए आप इसमें से अपने नाम में से कोई 2 लेटर चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव चोजन T and S। नाउ मेक वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स, जो लेटर्स आपने चूज किए हैं उसमें से, एंड द वर्ड्स कैन बी मीनिंगफुल और मीनिंगलेस and repetition is not allowed. Means you cannot make the word TT or SS. Make the words. I will give you few seconds. Make words and inform me how many words you are able to make. G. So you have not started with it. You started. हो गया, 2 letter words बन चुके होंगे I think. Choose any 2 letters from your name and make 2 letter words meaningful or meaningless and inform me how many words you have made. Done? How many words? 2 words. How many words? 2 words. Yes? 2. How many words, Mansaj? 2 words. Okay? So we can make only 2 words using the 2 letter words. Number of words is 2. Total is 2 words. Okay, now let us repeat this thing. Now I will choose any 3 letters from my name. Let me say it is Y-O-T, and now I will make 3 letter words. 3 letter words. Now start. Again the condition is same. Repetition is not allowed, and words can be meaningful and meaningless. So I hope, so I am giving you 1 or 2 minutes, and then inform me how many words you have made. So Ishika has made 6 words. Anyone else? 6 words. 6. सबके 6 बन रहे हैं। एक बार चेक करो, किसी के कम तो नहीं बन रहे, कम या ज्यादा, कम बन रहे हैं, 5 बन। एक बार फिर से चेक करो। Actually बच्चे, what is happening? So the students who have made 6 words, they are correct. Right, so you are missing some word, that means. So we will be getting total 6 words. Right, now we will repeat this exercise. Now with 4 letters. Now choose any 4 letters from your name. Choose any 4 letters and make 4 lettered words. Make 4 lettered words. For example, I have made T-O-S-Y. So again these words are meaningful or meaningless, and repetition is not allowed. So try it and inform me how many words you have made. So better take your time, take 2 or 3 minutes and inform me how many words you have made by using the 4 letters of your name. Yes? 10 words, okay. How many words you have made? Yasmin? 9 words, okay. How many words you have made? 12. Yes. How many words? 10. 10. Okay, Mansaj? 10. Aparajita, 8. So, 36. So better now you can see that variety of answers. Okay, there is variety of answers now. So you are saying 36 words. We are using 4 letters. So now I must tell you all that there will be 24 words. अब आप बेटे चेक करो, मैंने वर्ड्स बनाए नहीं है, मैंने नहीं बनाए वर्ड्स ना, still I am telling you कि you will be getting 24 words. So this is the fundamental principle of counting कि बिना मैंने actually words बनाए हुए फिर भी मैंने आपको काउंट करके बता दिया। Actually
मुझे 4 प्लेसेस फिल करने हैं, 4 लेटर वर्ड बनाना है, आई हैव टू फिल 4 प्लेसेस। अब पहले प्लेस को मैं कोई भी 4 लेटर लिख सकती हूँ ना, चारों में से कोई लेटर आई कैन राइट, राइट। तो सपोज इसको मैं जो भी लिखूँ, जे लिखूँ या जो भी मैंने चूज किया है, वाई ओ टी एस कोई भी, लेकिन देयर आर 4 वेज टू फिल दिस बॉक्स। पहला लेटर लिखने के कितने तरीके हैं मेरे पास, और वर्ड्स ना। अब जो लेटर वहां लिखा गया, आई वॉज टेलिंग यू कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो नेक्स्ट वाले बॉक्स के लिए कितने वर्ड्स बचेंगे, 3 वर्ड्स। तो इसका मतलब नेक्स्ट वाला बॉक्स कितने वेज के साथ फिल होगा, 3 वेज। फाइन, नाउ वी कम टू नेक्स्ट बॉक्स। अब एक लेटर यूज हो गया पहले वाले में, एक लेटर यूज हो गया दूसरे में, कोई भी। अब कितने लेटर बचे तीसरे बॉक्स के लिए, ओनली 2 लेटर बचे, ठीक है। सो 2 लेटर्स, फाइन, 2 वेज। अब जब मैंने यहाँ 3 लेटर लिख दिए, 4th बॉक्स के लिए कितने लेटर बचे, 1 ही बचा, 1 लेटर। सो नाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग स्टेट्स, अब एक बार ध्यान से सुनना, if a work can be done in 4 ways, if another work can be done in 3 ways, if another work can be done in 2 ways, and in last one more work is done in 1 way, and now I have to do all the works together। मुझे ये सारे काम इकट्ठे करने हैं, simultaneously करने हैं, तभी words बनेंगे ना। So the fundamental principle states कि I will multiply all these ways। So how many words will be there? 4 into 3 into 2, 24 तरीके हैं वर्ड बनाने के। जैसे एक और सिंपल सा एग्जाम्पल में देती हूँ। अब आप देखो, 2 लेटर वर्ड आपने इमीडिएटली बना दिए, 3 लेटर वर्ड में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, 4 लेटर वर्ड में और ज्यादा। तो अगर मेरे पास इतना ज्यादा काम बढ़ता जाएगा तो मैं तो लगे रहूँगी 2-3 घंटे, आई विल नॉट बी एबल टू मेक ऑल द वर्ड्स। बट इफ आई यूज दिस फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले से तुम्हें कितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स बता सकती हूँ, जस्ट मल्टीप्लाई करो। बस ये हमें सेंस होनी चाहिए कि पहला वर्ड कितने वेज के साथ फिल हो रहा है, दूसरा वर्ड कितने वेज के साथ, तीसरा कितने वेज और 4 कितने वेज के साथ। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इफ आई से कि नाउ रेपिटेशन इज अलाउड, कि जो लेटर यहाँ लिखा है वो यहाँ भी लिख सकती हूँ मैं, वो यहाँ भी लिख सकती हूँ और यहाँ भी लिख सकती हूँ। देन तो फर्स्ट विल बी रिटन इन 4 वेज, सेकेंड विल बी रिटन इन अगेन 4 वेज, जो लेटर पहले लिखा वो भी, देन 4 वेज, देन नाउ मल्टीप्लाई। अब कितने बनेंगे, करो मल्टीप्लाई एंड इनफॉर्म, कितने बनेंगे वर्ड्स, 4 into 4 16, वर्ड्स बनेंगे 256। अब आप सोचो कि आगे आगे कितना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, 5 लेटर वर्ड, 6 लेटर वर्ड बनाना, या इस तरह की और भी एग्जाम्पल है। सपोज आप एक हॉल में जाते हो, बड़ा सा हॉल है, आपको ड्यूटी मिलती है कि गो एंड काउंट द चेयर्स इन द हॉल, ठीक है। नाउ यू गो इन द हॉल, देखते हो वहाँ पर ढेर चेयर्स लगी हैं, ठीक है। अब एक तो तरीका है गो लाइक दिस, 1 2 3, है ना, इस तरह से। और दूसरा तरीका क्या है, काउंट द, व्हाट कैन वी डू देन, कैसे काउंटिंग करोगे आप बताओ। चेयर्स काउंट करने को कहा, ऐसे लाइंस में चेयर्स लगी हुई है, बहुत सारी लाइंस हैं, हाउ विल यू काउंट, कुछ बोलो। हाँ बिल्कुल, पहले क्या करोगे, फर्स्ट लाइन में, सपोज फर्स्ट लाइन में लेट अस से 20 चेयर्स हैं फर्स्ट लाइन में, देन वी विल काउंट हाउ मेनी लाइंस आर देयर। फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करो, दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें 2 ही काम होंगे, चेयर्स का नंबर और लाइंस का नंबर। सो चेयर्स आर 20 एंड सपोज लाइंस आर 30, सो हाउ मेनी चेयर्स आर देयर, you will multiply 30 and 20, कितना आएगा, 600। तो हो गया ना एक सेकंड में, काम पे के काउंट करते हैं। तो दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि अगर एक काम m ले लेते हैं, m वेज के साथ हो सकता है, दूसरा काम कैन बी डन इन n वेज, then the total number of ways in which the whole job can be done is m into n, and in our this activity this is m into n into p into q. This fundamental
principle of counting can be extended to any number of jobs done. 4 हो 5 हो, बस अभी ये सीखना होता है कि पहला काम कितने तरीके से हो रहा है, दूसरा कितने तरीके से, तीसरा कितने तरीके से, फोर्थ कितने तरीके से, then we